اہم خبر شامل کریں گے۔ ترکیہ بحریہ کے وفد کا ترک چیف آف سٹاف ترکیہ کی قیادت میں کراچی کا دورہ۔ وفد کی قیادت ترک بحریہ کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل ابراہیم اوزدم کوچرکر ترک وفد نے کی ہے۔ پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی سے، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، ترکیہ کے بحریہ کی وفد کا ترک چیف آف سٹاف کی قیادت میں کراچی کا دورہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترکیہ کی وفد کی قیادت ترک بحریہ کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل ابراہیم اوزدم کوچر کر رہے تھے۔ ترک وفد نے کراچی میں پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں کی ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترک وفد نے مزار قائد پر حاضری بھی کی ہے اور بابائے قوم کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے۔ دورے کے اختتام پر پاکستان اور ترکیہ کا بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں مشترکہ پیٹرولنگ اور بحری مشق میں حصہ لیا۔ اس مشق کے انعقاد سے دونوں ممالک کی بحریہ کے مابین مشترکہ آپریشن میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ عائشہ کا وزیر کا کہنا ہے کہ ترک بحریہ کے جہاز اور وفد کے دورے سے دونوں برادر ممالک کے عوام بالخصوص بحریہ کے مابین بیرونی تعلقات کو تقویت ملے گی۔ جی خورشید، تقریب کے حوالے سے بتائیے گا کون کون شریک رہا پاکستان کی طرف سے بھی؟ دیکھیں، بحریہ کے اس تقریب کے اندر جو ہے وہ ترک وفد نے کراچی میں جو ملاقاتیں کی ہیں اس میں 8 بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں کی ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ خورشید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ترکیہ بحریہ کے وفد کا ترک چیف آف سٹاف ترکیہ کے قیادت میں کراچی کا دورہ۔ وفد کی قیادت ترک بحریہ کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل ابراہیم اوزدم کوچر کر رہے تھے، جبکہ پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈو سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ہمارے ساتھ خورشید رحمانی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ خورشید، یہ بتائیے گا کہ دورہ بھی کیا گیا ہے، مزار قائد بھی گئے ہیں اور آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں دونوں جو ممالک ہیں ان کے جو بحریہ کے جو آپریشنز ہیں اور اس کے مابین بالخصوص بحریہ کے مابین بیرونی تعلقات کو اہمیت ملے گی اس ملاقات سے۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ اس میں مشق کے انعقاد سے اس میں مشق انعقاد ہوا جس میں دونوں ممالک کی بحریہ کے مابین مشترکہ آپریشن کے تعاون کو فروغ ملے گا۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول بحریہ اور اس کے علاوہ اس کی پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دورے کے اختتام پر پاکستان اور ترکیہ بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں مشترکہ پیٹرولنگ اور بحری مشق میں حصہ بھی لیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی صفائی مہم جاری ہے۔ خالد بن ولید روڈ پر جمع بارش کا پانی صاف کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مزید بات کریں گے، احسن عباسی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، خالد بن ولید روڈ، طارق روڈ اور اطراف خداداد کالونی اور اطراف کے علاقوں میں کھڑے ہونے والے پانی کو جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ سویپنگ کا عمل جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے۔ کچھ شہری بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیے گا کہاں کہاں پانی نظر آیا، کام کرتے ہوئے ادارے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، اس بار ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ میں یہیں قریب ہی رہتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھا کہ بھائی وہاں پہ بھی عملہ لگا ہوا ہے اور ابھی یہاں پہ خالد بن ولید روڈ پہ بھی شرائع قائدین پہ بھی عملہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح رات میں بھی ہم نے دیکھا، رات میں بھی کام ہوا ہے اور کافی اچھا اس بار جو ہے پانی نکالا ہے سارا۔ ٹھیک ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے اداروں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر؟ جی بالکل، کیوں نہیں آیا، ایسا شہری جو ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب عملہ کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے لوگ کام کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ علاقہ صاف نظر آتا ہے، پانی جس طرح بارش کا بتایا گیا ہے اور آئندہ بھی بتایا گیا ہے تو اس طرح بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عملہ پانی نکال رہا ہے اور جو ہے نا سارا ہمیں جو ہے کوئی مشکلات نہیں عوام کو اور عوام کے لیے ہو رہی ہے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اس وقت سجاد کیمرہ مین آپ کو مناظر دکھائیں تو یہ جو چورنگی ہے خالد بن ولید کو لنک کرنے والی، یہاں پہ پانی جو ہے وہ بارش کا کھڑا تھا جس سے جو ہے وہ شہریوں کو ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی، شہریوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت سویپنگ کا عمل جاری ہے۔ پہلے جو سیکشن مشینیں ہیں اس سے پانی کو تمام کو جو ہے وہ سک کر کے منتقل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے موجود جو پانی سڑک پہ رہ گیا تھا اس کو سویپنگ کر کے جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ جی بارش کے بعد نیو امیجنا روڈ کی حالت ابتر ہو گئی۔ سڑک پر گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہری کہتے ہیں کہ 2 برس سے سڑک خستہ حالی کا شکار ہے۔
और रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। मजीद जानते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, न्यू एमेजिना से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये शारा जो है वो गंदगी और गलाजत की मिसाल बनती चली जा रही है। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम यहाँ पे जो है वो शारा के लिए तवाकुन तो साबित हो ही रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बरसात ने भी यहाँ पे जो है वो तबाही मचा के रख दी है। मेरा कैमरामैन ऐसा नमीन अगर आपको रोड की हालत दिखाएं तो इस वक्त गंदगी और कीचड़ में ये भरा हुआ रोड है, जो कि बस डिपो वगैरह के लिए भी जो यहाँ पर मुसाफिर आते हैं उनके लिए भी अजियत का बाइस बना हुआ है। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम है, जबकि दूसरी जानिब बारिश ने भी जो है यहाँ पर तबाही मचा के रख दी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये कब से यहाँ पे जो वो इस तरीके से गंदगी का निज़ाम है और सेवरेज का कितना बोसीदा निज़ाम है और बारिश ने कितनी तबाही मचा दी? सर ये बारिश जब से हुई है ना तो उसने डबल हमारा काम ख़राब कर दिया है। यहाँ पे रिक्शा, टैक्सी, ये सारे कारें आती हैं, नीचे लगती हैं। ये रोड मज़ीद बारिश की वजह से और ख़राब हो गया है, पहले भी ख़राब था। और सेवरेज का तो निज़ाम 2 साल से वहाँ से आगे से लाइन बंद हुई है और कोई खोलता भी नहीं है, कोई पूछता ही, कोई आने वाला भी नहीं है जो यहाँ पे आके कोई रोड बनाए। यहाँ से लेकर पूरा एमेजिना, न्यू एमेजिना रोड ये है, बिल्कुल आखिर तक ख़राब है और ये बिल्कुल कभी नहीं बन रहा है और वो भी नहीं बन रहा है रोड आगे भी। बिल्कुल पूरी ये एक लाइन है, स्टूडेंट बिरयानी रोड है इसको कहते हैं, आगे तक रोड वहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक ख़राब रोड है। और मस्जिद का ये मस्जिद सारा पानी, ये सेवरेज का पानी है मस्जिद के गेट के आगे जाता है। नमाजियों को भी बहुत मुश्किलात होती है, नमाज जो पढ़ने आता है वो बहुत मुश्किल होती है। हाँ जी बिल्कुल, 2 साल से ये रोड जो है वो खस्ता हाली की दास्तान बना हुआ है, जबकि इंतज़ामिया जो है वो इस पर जो वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसी किस्म की कोई सुनवाई नज़र नहीं आती। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम है, 2 साल से लाइन चौक हैं, एमेजिना रोड पार्किंग प्लाजा से स्टार्ट से लेकर आखिर तक जो है वो ख़राब तबाहकुन हालत में है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इस पर इक़दाम देखने में नज़र नहीं आता। बरसात ने जो है वो मज़ीद इस शारा को जो है वो तबाहकुन बना दिया है। जी। और दूसरी जानिब शहर कायद में जारी बारिशों ने सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। सिविल अस्पताल और जामा उर्दू के सामने से गुजरने वाली सड़क ज़ेरे आब आ गई। शाहरा पर खुदाई के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। बात करेंगे मीर क्यूरियो से, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 रोज़ से शहर कायद में जारी मानसून की बारिशों की वजह से शहर की जो मेन सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सड़कों पर पानी जमा हो गया है, लेकिन ताहाल सड़कों से पानी साफ़ नहीं किया गया, निकाला नहीं किया गया। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के ओल्ड सिटी एरिया से। ये कराची का मारविक रोड कहलाता है। यहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी की अब्दुल हक कैंपस भी है, जबकि दूसरी जानब जो है सिविल अस्पताल कराची और ट्रामा सेंटर भी मौजूद है। इसी हवाले से हम एक शहरी से भी बात करेंगे। बताइएगा कि कब से इस रोड की ये हालत है और यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है ट्रैफिक जाम होने के बाद? भाईजान यहाँ पे सूरत हाल होते हैं, सामने ड्रामा सेंटर है, इमरजेंसी रोड है, ये इमरजेंसी रोड है। इसका 1 महीना हो गया जब ये गड्ढे मड्ढे किया, यहाँ पे गाड़ी फंस गया, ट्रैक्टर आपके सामने ईदी सेंटर है, सामने ड्रामा सेंटर है, सिविल अस्पताल में बड़ा परेशानी लोग को बन जाते हैं। ठीक है, ये दोनों सेट का रोड है, बड़ा जाम होते हैं, मुश्किल होते हैं, लोग का परेशानी है। बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। इनका कहना है कि 1 महीने इस रोड की ये हालत है। KMC का वर्क एरिया है, पास में ही KMC है, लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस रोड पर कोई ताहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, और अब आपको बताएंगे कराची वालों के लिए बारिश भी जहमत बन गई है। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हम्माद। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर कोऑपरेटिव मार्केट के बाहर। यहाँ पर बारिश के बाद पानी जहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट आने वाले जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना है। ना सिर्फ जो है मार्केट आने वाले जो कस्टमर हैं उनको, बल्कि दुकानदारों को भी परेशानी का सामना है। मेरे कैमरामैन आपको थोड़े से मनाजिर अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी होने की वजह से जो मेरे बराबर में जो ज्वेलरी की मार्केट है और इसी के साथ जो है वो कपड़े की भी मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट है, और जो दीगर मार्केटें हैं यहाँ पर कायम, वहाँ पर आने वाले जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर परेशानी में जो है आ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा जब बारिश होती है तो ये वाली सड़क जो है यहाँ पर पानी कई दिन रहता है पानी की निकासी के लिए। या ना तो यहाँ पर हमें सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, ना तो जो है वो KMC के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं कि इसकी फौरी तौर पर जो है सफाई करें। यहाँ पर कीचड़ साइडों में जो है यहाँ पर कीचड़ भी जमा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को यहाँ से अपनी गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से जो है वो गुजरने में परेशानी भी हो रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो बारिश के बाद ना सिर्फ सदर
کہ یہ مقام بلکہ صدر کے مختلف گلیاں جو ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے گندگی اور غلاظت کا وہاں پر ڈھیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ کافی پریشان ہیں آنے میں، اور یہاں سے گزرنے والے ہر شہری جو ہے یہاں سے جو گزرتا ہے، جو کہ یہاں سے جو یہاں پر ریڈ زون بھی قریب ہے، جو ریڈ زون جانے والے یا اس روڈ استعمال کرنے والے کلب روڈ یا پھر جو ہے پاسپورٹ آفس آنے والے لوگوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے بارش کے بعد فوری طور پر جو ہے عملہ یہاں پر بھیج کے جو ہے صفائی ستھرائی کرا دے، تو یہ جو ہے یہاں پر لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ جی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے اورنگی کے علاقے نشان حیدر چوک پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 1000 پودے لگائے جائیں گے۔ مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں اس موجود ہوں اورنگی کے علاقے نشان حیدر چوک پر، جہاں پر آج شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع غربی انتظامیہ، مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن کے ایڈمنسٹریشن نے یہ کام کیا ہے۔ پاکستان بیوریج لمیٹڈ کے تعاون سے ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں، ان کے اخلاق احمد صاحب، ان سے پوچھیں اخلاق صاحب کتنے پودے لگائے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں اور کس طرح یہ کام ہوگا؟ جی السلام علیکم، میرا نام محمد اخلاق ہے، میرا تعلق پاکستان بیوریج لمیٹڈ سے ہے، اور ہم نے 5000 پودے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ کمشنر کراچی تھے، اور اس میں سے آج 1000 پودے ہم یہاں پر اورنگی ٹاؤن میں ہم لگا رہے ہیں، اور ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ جس طرح کی گرینری پر کام ہو رہا ہے تو ہم آگے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ ضروری ہے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری کی جائے اور ایک آگاہی مہم اچھے پیمانے پہ شروع کی جائے۔ بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور خاص طور پر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز پر بڑا توجہ دی جا رہی ہے، اور تمام ادارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ پوری کراچی انشاءاللہ گرین ہوگا۔ جی سنا آپ نے کہ واقعی میں کراچی کیا پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو سرسبز بنانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو کی جا رہی ہے ضلع غربی کراچی میں، مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن کی انتظامیہ کر رہی ہے، اور اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں پاکستان بیوریج لمیٹڈ والے، اور ان کی کوشش ہے کہ زیادہ پودے دیں تاکہ ماحول میں جو ایک سختی ہے، جو ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، سرسبز بنا کر اسے بہتر کیا جائے۔ جی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی نے کورنگی ٹاؤن میں جاری شجرکاری مہم کا معائنہ کیا، پودے بھی لگائے، کہا ماحولیاتی بگاڑ روکنے کے لیے واحد حل شجرکاری ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ہریالی کے فروغ کے لیے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بھی میدان میں آ گئے، شجرکاری کو ماحولیاتی بگاڑ روکنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی نے سندھ حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی شجرکاری مہم کے سلسلے میں کورنگی ٹاؤن کا دورہ کیا، کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب پودے بھی لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف شجرکاری سے ہی ماحولیاتی بگاڑ کو روکا جا سکتا ہے۔ جہاں ہمیں بین الاقوامی طور پر اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، وہیں پر کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں جو بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ٹیمپریچر اس خطے کا بڑھ رہا ہے، اس کو صرف روکنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں، اور درخت ہی لگانے سے ہم اس خطے کے ٹیمپریچر کو کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے شجرکاری کی تفصیلات بتائیں، جبکہ پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے صدر جانی میمن نے شجرکاری مہم کو پارٹی کے بہتر کاموں کا تسلسل قرار دیا۔ ہم نے کیمپ لگانا ہے عیدگاہ گراؤنڈ 12000 روڈ پہ، جہاں ہم 1 اگست سے ہم لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کریں گے، جہاں ہماری پارک ڈپارٹمنٹ کے مالی حضرات بھی ہوں گے، ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا، تاکہ ہم جو پبلک لینے آئے گی پودا، ہم اس کو بتائیں گے بھی کہ پودا لگنے کے بعد اس کی حفاظت کیسی ہونی ہے۔ ہم سب نے مل کر کورنگی ٹاؤن کی عوام نے مل کر اس کو سب بنانا ہے، تو یہ شجرکاری مہم جو ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ صاحب کی جانب سے ہوئی ہے، تو اس کو سرسبز بنانے کے لیے آپ کے توسط سے میں عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ مل کر انشاءاللہ اس کو سرسبز بنانا ہے، اور اس کی مالکی لینی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ کورنگی ٹاؤن میں شجرکاری کے دوران ماحول دوست پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل فواد غفار سمرو نے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ندیم اورنگزیب کے ہمراہ لیاقت آباد ٹاؤن میں جاری شجرکاری مہم کا دورہ کیا اور پودے لگائے۔ اس موقع پر فواد غفار سمرو نے کہا کہ شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مزید اپڈیٹ لیں گے رضوان احمد سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے 1 اکیلا اور 2 11۔
यही मिसाल जो है शजरकारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पे टाउन हुकूमतें और ज़िलाई हुकूमतें शजरकारी के फ़रोग़ के हवाले से एक पेज पर दिखाई देती हैं। आज लियाकताबाद टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से जो पार्क बनाया गया है उसमें शजरकारी के हवाले से DC सेंट्रल फवाद गफ़ार सोमरो और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न लियाकताबाद नदीम औरंगज़ेब ने जो है पौधा लगाया है और शजरकारी के फ़रोग़ के हवाले से काम को आगे बढ़ाया। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, शजरकारी के फ़रोग़ के हवाले से अब तक जो काम हुआ है उससे किस हद तक मुतमईन है, मज़ीद पेशरफ़्त क्या होने जा रही है? जी देखें, इसमें शजरकारी की मुहिम का जो है इस साल का ये भी आगाज़ हुआ है और ये मोमेंटम अभी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है और इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट है कि हम हर टाउन पे तकरीबन 10,000 पौधों का जो टारगेट और हदफ है वो हम पूरा करें। अभी मैं जैसे यहाँ पे पार्क में दाखिल हुआ, आपने भी खुद देखा कि बड़ा गुंजान आबाद इलाका है और बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने पार्क को मेनटेन किया है और मुझे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने ये भी बताया कि इस किस्म के और 7 दीगर पार्क्स भी इस तरह बनाए गए हैं। बिल्कुल, लियाकताबाद टाउन गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पे जितनी आबादी है उसी हिसाब से यहाँ पे ट्री प्लांटेशन की भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, आवाम को ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें और इंतज़ामिया का हाथ बढ़ाएँ और शजरकारी को फ़रोग़ दें। जी, जमात इस्लामी का आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। पुलिस ने भी कमर कस ली है। डिस्ट्रिक्ट साउथ रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल प्लान जारी कर दिया है। इस पर हमें अपडेट करेंगे ताहा मलिक। आगाह कीजिएगा ताहा। बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो जमात इस्लामी का जो मरकज़ी धरना है IPPs और बिजली के बिलों में महंगाई के खिलाफ जो है वो धरना इस वक्त जारी और सारी है, जिसकी क़यादत हाफिज़ नईम रहमान कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कुछ दिन कबल जो है वो ऐलान किया था कि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर 4 शहरों के अंदर उन्होंने कहा था कि ये धरने दिए जाएंगे, जिसके अंदर कोयटा, पेशावर और लाहौर शामिल था। ताहम कराची में जो धरना है वो जो है ताख़ीर का मौखर किया गया 1 से 2 दिनों के बाद, जबकि आज जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि 5:30 बजे गवर्नर हाउस के पास जो है वो धरना दिया जाएगा। ये धरना जो है इसका आगाज़ मस्जिद खिज़रा से होगा, जबकि मस्जिद खिज़रा से जो रैली है वो पैदल चलते हुए गवर्नर हाउस तक आएगी और गवर्नर हाउस पर आने के बाद ये जो रैली है ये धरने की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इस वक्त अगर हम तर्जुमान की बात करें तो तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि हमें इजाज़त मिले ना मिले हम जो है वो इस धरने में ज़रूर शामिल होंगे और इस धरने पर ज़रूर बैठेंगे। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी जो है वो अपने कुछ चंद बयानात के अंदर जो है वो इस धरने का वेलकम किया है और उनका ये कहना था कि जो गवर्नर हाउस के अंदर IT क्लासेस चल रही हैं, उनके अगर बच्चों को ना रोका गया, उनके बच्चों को अगर जगह दी गई धरने की, तो आप धरने में जो है बिल्कुल बैठ सकते हैं और हम वेलकम करते हैं। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है मौक़िफ़ सामने आया कि हम जो है वो गवर्नर हाउस में जो बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं उनको ज़रूर जगह देंगे। और उनका ये भी कहना था तर्जुमान जमात इस्लामी का कि हम इस धरने पर बैठेंगे और इस धरने में जो जगह दी जाएगी, जो भी कोशिश की जाएगी वो होगी, जो भी डिमांड रखी जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से जो है बाकायदा अभी तक इजाज़त और ना इजाज़त देने का कोई भी जो है मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि खामोशी इख्तियार की गई है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के लोग, जमात इस्लामी के अहदेदारान जो है उनका ये कहना है कि हम इस धरने पर ज़रूर बैठेंगे और जब तक ऐलान नहीं होता तब तक जो है हम इस धरने को जारी रखेंगे। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि धरना जो है वो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा। ये धरना जो है वो इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी में जो धरना है उसका तसलसल है और जब तक वो धरना वहाँ पर जारी रहेगा, यहाँ कराची में भी जो है वो धरना जारी रहेगा। ताहम इसके इख्तिताम के हवाले से अभी तक नहीं बताया जा सकता जब तक हुकूमत जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के मुतालबात नहीं मानती। ये सारे जो धरने हैं ये जारी रहेंगे। जी, सारे धरने जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साली पट्टी इब्राहिम हैदरी की रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल इब्राहिम हैदरी में कई बरस के बाद दिन रात ज़चगियाँ और गायनी सर्जरीज शुरू कर दी गई। माहिगीरों के अहल खाना को घर के करीब मुफ्त सहूलत मिलना शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रेंज से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में, जो कि कराची की साहिली पट्टी पर वाक़या है और गुंजान तरीन इलाका है। यहाँ की आवाम के लिए खुशखबरी भी है कि यहाँ पर जो कई सालों से सर्जरियां नहीं हो रही थी, डिलीवरी के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब उनके घर के करीब इस अस्पताल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ गायनी वार्ड की इंचार्ज हैं डॉक्टर शाजिया, इनसे पूछेंगे। माहीगीर हैं, कई दिनों तो घर नहीं आते, उनकी ख्वातीन के लिए कितनी बड़ी नेमत है और इलाके के करीब
आपने ये सहूलत शुरू कर दी, क्या तफसीलात हैं? इस एरिया में, इस छोटे से अस्पताल में इतनी बड़ी सर्विस होना कि जिसमें इमरजेंसी में 24 घंटे आपको सिजेरियन सेक्शन की, जो कि एक बड़ा ऑपरेशन होता है, उसकी भी सहूलत मौजूद है, और PPHI की और सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से सबसे मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि वार्ड जो हैं उनको क्लीन अच्छा किया जा रहा है, और बाकायदा AC भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम AC वर्किंग है, और पेशेंट यहाँ बहुत खुश हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी PPHI को और सिंध गवर्नमेंट दोनों को कि उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस मुहैया की, और मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, वो भले मिडवाइफ हो, स्टाफ है दूसरी हो, नर्सें हों या स्वीपर्स हों। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, PPHI, हमारे MS साहब, इन सबको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उनके आने की वजह से ये गरीब आवाम को इतना हम फ़ायदा दे रहे हैं, और हमें माँ और बच्चे को बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी से बचाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना था कि तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं इस वार्ड में, और तमाम तर सहूलियात फराहम भी की जा रही हैं। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं वार्ड में कि अभी भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं जिनके सीजर होकर इस वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है। जबकि इसके अलावा अगर अंदर की बात करें थोड़ा सा, तो अंदर भी दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन कि तमाम माहौल जो है एयर कंडीशन माहौल है, तमाम तर यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह पैदाइश हो रहे हैं, बच्चों की पैदाइश यहाँ पर हो रही है, और इसी तरह बेहतर सहूलियात है। ये जो इलाका है ये गुंजान तरीन इलाका है, और यहाँ पे ज्यादातर माहीगीर रहते हैं, तो उनकी फैमिलीज को यहाँ पर तिब्बी सहूलियात 24 घंटे के लिए फराहम कर दी गई है, जो कि इलाके के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जी, कराची पुलिस चीफ की जानिब से यौम शोहदा के मौका पर शोहदा के बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। जावेद आलम ओढो कहते हैं कि आज शोहदा की कुर्बानियों के बायस ही शहर में अमन कायम है। मज़ीद जानते हैं उनके साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। कोरंगी पुलिस की जानिब से शोहदा की याद में और शोहदा की फैमिलीज़ के साथ एक बहुत पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई थी कोरंगी में, जिसके मेहमान खुसूसी एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो हैं। उनसे हम बात करेंगे कि शोहदा के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि कल 4 तारीख़ है और उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ की गई, जिसका एक सिलसिला आज भी यहाँ पर हुआ है। देखिए, कल हमारा इस कैलेंडर का सबसे बड़ा दिन होता है जो यौम शोहदा पुलिस पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, तो इसकी तो ज़ाहिर है बड़ी तैयारी है। और कल आप इंशाल्लाह देखेंगे पूरे मोअज़्ज़िज़ीन शहर, शोहदा की फैमिली पूरे सिंध से वो IG साहब की सरकर्दी में हम बुलाते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं, तकरीम देते हैं, और उनके मसले मसाइल हैं वो उस पर डिस्कस भी होता है, और उनके मसाइल को हल करने की एक जहद और कोशिश भी होती है। लेकिन इसके अलावा पूरा साल हम इसी काम में लगे रहते हैं। ये नहीं है कि एक दिन हम करके भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह डेस्क हैं शोहदा के, SP लेवल पे है, DIG लेवल पे है, मेरी ऑफिस में KPO में है, CPO में है, तो वहाँ पे प्रायोरिटी पे इनके मसाइल वगैरह हल करने की कोशिश होती है। और वेलफेयर में एक बड़ी खतीर रकम सिंध पुलिस वेलफेयर बोर्ड खर्च करती है, जिसमें सिर्फ हम नहीं हैं, शहर के मुखियर हजरात भी हैं, और उस पर एक मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए उसको बिल्कुल ओपन किया गया है ताकि पता चले कि खर्चा कहाँ पे हो रहा है। तो वो बड़ी खतीर रकम इन बच्चों के जो लवाकिन के बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप्स पे, तालीम पे, उनके बच्चों की शादी ब्याह पे, उनकी हेल्थ पे, अगर खुदा न खासा हॉस्पिटल का कोई बड़ा खर्चा आ गया, ये सब हम करते हैं। बहुत शुक्रिया। पुलिस चीफ हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना था कि शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनके तमाम दुख दर्द में वो शरीक हैं और उनके दुख दर्द इसी तरह बांटते रहेंगे। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में डकैती और मनशियात के केस की समाअत हुई। पुलिस ने 2 गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को जेल भेज दिया। जवाद आसिफ से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, असलहा बरामद होने और मंशियात बरामद होने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान राशिद और इम्तियाज़ को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर ज़िमनी चालान भी तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये जो मुल्जिम राशिद है इसके पास से असलहा बरामद हुआ, जबकि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जो मुल्जिम इम्तियाज़ है वो आदी जराइम पेशा है और इससे पहले भी
वो 2 बार जेल जा चुका है, इसका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इन मुल्जिमान को पुलिस ने कार्रवाइयां करके लाशारी मोहल्ले से जो है वो गिरफ्तार किया था। मुलजिम इम्तियाज के पास से जो है वो क्रिस्टाल भी बरामद की गई है, जिसके बाद इन दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें अदालत में पेश किया गया। अब मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो थाना पाक कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में मंशियात एक्ट की दफात लगाई गई पीछे।